Good morning, students. Yesterday we have started greedy method and the first application Kruskal. The first application is knapsack problem, fractional knapsack problem हमने कल किया था बेटा. Today we will discuss the second application of the greedy method, that is minimum cost spanning tree, right? So what are the properties of this tree? A tree spanning tree if and only if it contain all vertices of graph. ठीक है, कोई भी ग्राफ गिवन होगा, अगर जितने उसमें वर्टिसेस हैं उतने ही मिनिमम स्पैनिंग को स्पैनिंग ट्री में वर्टिसेस होने चाहिए. वर्टिसेस शुड रिमेन सेम, राइट. Second property is there should be n minus 1 edges. Suppose there are n number of vertices. Suppose there are 7 vertices. तो edges कितने होने चाहिए मिनिमम को स्पैनिंग ट्री में? 6. n minus 1. n is number of vertices, right? And the third most important property is that it does not contain cycle. तो उस ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं होना चाहिए, n minus 1 edges होनी चाहिए and contain all vertices of graph. That tree is called minimum co-spanning tree, right? See an example. Here is a graph A, B, C, D vertices. There are 4 vertices, there are 4 edges, right, with their weights 10, 20, 30, 40. अब इसके कितने मिनिमम स्पैनिंग को स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? There are so many possibilities, like this can be a minimum spanning tree, ठीक है, because there are 4 vertices. Vertices are same 4, but the edges are 3. So this can be MCST, this can be an MCST. You can see there are 4 vertices and 3 edges. There are 4 vertices and 3 edges. There are 4 vertices and 3 edges. So there are 4 possible spanning trees, but we have to choose the minimum cost. Spanning trees are 4 from this graph. This is the graph. These are the sub graphs. You can say it. ये उसके सब parts and sub graph है. And we have to find the minimum cost spanning tree. So you can calculate the weight. You can add all the weights and you can find the minimum cost, right? So this tree, this subtree or this subgraph is the minimum cost spanning tree. It will give the minimum cost 60, 30, 50 and 60. आप ये कैलकुलेट करोगे 60 and 70, इसकी 70 कोस्ट बनती है, इसकी बनती है 90 कोस्ट बनती है, ठीक है, इसकी भी 90 कोस्ट है. सिर्फ ये वाला जो ट्री है मिनिमम कोस्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. आप इसमें देखो साइकिल भी नहीं बन रहा, देयर इज़ नो साइकिल. साइकिल होता है ये जो क्लोज्ड हो, दिस इज साइकिल. दिस ग्राफ कंटेन्स साइकिल बट देयर इज़ नो साइकिल. देयर इज़ n minus 1 edges and there are all vertices. बस आपको ये 3 कंडीशन चेक करनी है in every spanning tree, right? And the algorithm is very simple, which is given in the books. You can go through it, and if there will be any doubt, let me know. So move to the next next topic. So there are 2 algorithms which comes under minimum cost spanning tree. Those are Kruskal algorithm and Prim's algorithm. आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, आई थिंक आप लोगों ने शायद किया भी हो अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर. सो द मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री हैव 2 algorithms जिसके थ्रू you can find the minimum cost spanning tree, right? So the first algorithm is Kruskal algorithm. I will only I will go through with the example, ठीक है. यू कैन आप जो एल्गोरिदम है वो आप बुक से कर सकते हो. बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. यू हैव टू ओनली ऐड और डिलीट द एजेस. सो मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को अंडरस्टैंड कराऊंगी, राइट. इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको एल्गोरिदम अपने आप आ जाएगा. सो ये जो एग्जांपल है दिस इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक्स, ठीक है. यहाँ पे एज का वेट मिसिंग है आपकी बुक्स के अंदर आई थिंक, तो यहाँ पे वेट डाल लेना 28. रेस्ट ऑफ द डायग्राम इज़ द सेम, ठीक है. सो देर आर हाउ मैनी वर्टिसेस? देर आर 7 वर्टिसेस, 1 2 3
4, 5, 6 and 7. We are going to do first Kruskal algorithm. ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है. इसको हम मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एंड उनके वेट्स, हर एक एजेस के वेट्स गिवन है. ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी था मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री की कि सारे वर्टिसेस लेने हैं. सो वी विल ड्रॉ द ऑल द वर्टिसेस. 1, 2, 3, 'So I have drawn all the vertices. 7 vertices है, मैंने 7 के 7 vertices ड्रॉ कर लिए. Now आगे फर्दर प्रोसीजर क्या है, वी विल सेलेक्ट द मिनिमम कोस्ट एज. ठीक है, जिसका वेट मिनिमम होगा हम वो वाली एज पहले ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो इनमें से देखो किसका वेट सबसे कम है. दिस एज 10 इज़ द मिनिमम एज, वेट एज. सो वी विल ड्रॉ दिस फर्स्ट 10. सो वर्टिसेस मार्क कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो इनमें से आपने बेटा चूज़ करना है कि सबसे कम कोस्ट वाली एज कौन सी है. सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वेट एज, दैट इज़ 10. इसके बाद दोबारा चेक करो. हेयर इट इज़ 12, नॉट 22, इट इज़ 12. अब नेक्स्ट एज कौन सी आई है, 12. ठीक है, तो 12 वाली पहले एज लगा लो, उससे 14 मिनिमम कोस्ट वाली लेनी है आपने वेट. ठीक है, 14 लगा लेते हैं. तब तक हमने एजेस बनाते जाना है जब तक साइकिल ना बने. ठीक है, देन 16. ये आपकी बुक में एक सिंगल करके डायग्राम्स बनाए गए हैं, आप अलग अलग बनाओगे. पहले एक एज ड्रॉ करोगे, फिर से आप वर्टिसेस बनाओगे, फिर दूसरी एज ड्रॉ करोगे, फिर से वर्टिसेस बनाओगे, फिर तीसरी एज ड्रॉ करोगे, फिर से सारे वर्टिसेस बनाओगे. आपकी बुक में ऐसे डिस्क्राइब किया गया. मैं एक ही डायग्राम के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट. एंड नेक्स्ट आफ्टर 16 द मिनिमम एज इज़ 18. आप देख सकते हो सबसे जो बची हैं उनमें से सबसे कम वेट वाली 18 है. इफ़ वी ड्रॉ दिस एज देयर विल बी अ साइकिल, देयर विल बी अ लूप. एक साइकिल बनता है अगर हम ये ड्रॉ कर देंगे. तो जो मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री कहता है इट शुड नॉट कंटेन साइकिल, राइट. तो हम इस एज को डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम नहीं ड्रॉ करेंगे. सो मूव टू द नेक्स्ट एज इज़ 22. सो वी कैन ड्रॉ दिस बिकॉज ये साइकिल नहीं बनाती है. फर्दर नेक्स्ट इज़ 24. इफ़ वी ड्रॉ दिस एज इट विल मेक साइकिल अगेन, सो वी विल डिस्कार्ड इट. ठीक है, हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ये साइकिल बना रही है. सो मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज़ 25. वी कैन ड्रॉ इट बिकॉज इससे कोई साइकिल नहीं बन रहा है. यू कैन सी द ट्री इज़ ओपन, द ग्राफ इज़ ओपन, देयर इज़ नो लूप, देयर इज़ नो साइकिल. एंड द लास्ट, if we draw this 28, this edge, it will again make a cycle, so we can't draw it. ठीक है, हम इसको नहीं बना सकते, हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे. सो यू कैन सी there are 7 vertices and count the number of edges. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. You can see they are in 7 number of vertices and there are 6 number of edges. Edges should be n-1. तो n कितना है 7 और एजेस कितनी है 6. सो दिस इज़ अ मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री. यू कैन कैलकुलेट द वेट. मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री का वेट कितना है, दैट विल बी अ 99. आप सारे वेट्स को प्लस कर दो तो इट विल बी अ 99 मिनिमम वेट, मिनिमम कोस्ट. फाइन. सो हेयर यू कैन सी एजेस कितनी है, वर्टिसेस -1, राइट. सो इसका अगर हम टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम इट विल बी अ वर्टिसेस इनटू नंबर ऑफ एजेस.
तो एजेस कितनी होंगी, जितने वर्टिसेस हैं उसमें से अगर हम -1 कर देंगे तो टोटल टाइम विल बी वर्टिसेस इनटू नंबर ऑफ एजेस. अगर इन दोनों की वैल्यू सपोज वर्टिसेस n हैं, एजेस भी n हैं, it will become n square. This will be your time complexity, right? And now move to the next